Hello everyone and welcome to Career Launcher. I hope you are aware that every Sunday at 3 p.m. We come up with the revision of the last 1 week, the Hindu newspaper and its analysis. So if I am audible and visible, please write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can start our session. जैसा कि आपको पता होगा कि हर संडे को पिछले वीक का लास्ट वीक में जो जो इम्पोर्टेंट द हिंदू न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आए या कोई इंपॉर्टेंट चीजें आई उसको हम लोग फास्ट रिवाइज कराते हैं क्विज के फॉर्म में. फर्स्ट थिंग इज, कैन यू प्लीज टेल मी, टुडे इज 29 सितंबर, व्हाट इज स्पेशल? देयर इज एन इंपॉर्टेंट डे टुडे. कोई बता सकता है? एनीवन? यस, गुड इवनिंग आलिया, तनिष्का, सैफी, गुड इवनिंग गाइस. 29 September is what? Today is 29 September. It is observed as a day. कौन सा दिन मनाया जाता है आज? बता सकते हो? And what is its theme? Anyone? World Heart Day. Yes, Alia. Very good. World Heart Day. And what is its theme? World Heart Day is on today. That is 29 September. And the theme actually is use heart for action. So this is the theme. Okay. This you should be knowing about it. Yes, Tanishka Verma, you are also right. World Heart Day is today. Khair, so let's start with actually this week, that is Monday का द हिंदू न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज में आया था. So last week Monday, the first page article talking about the new president of Sri Lanka. So please tell me who is the new president of Sri Lanka and what is his name of the political party to which he is associated with or to which he belongs to. तो नए प्रेसिडेंट का नाम आपको ये सब पता होना चाहिए बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट. सो नए प्रेसिडेंट का नाम बताना है. प्लीज टेल मी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका एंड द नेम ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी. यस, वेरी गुड. तनिष्क वर्मा हैज आंसर्ड इट करेक्टली. यस, हाँ, दिशा नायक. यस, सैफी नोमानी, आपने भी सही जवाब दिया. निशा, आपने भी पार्शियली बताया, बट ओके फाइन. तो एक्चुअली उनका नाम AKD है, ऐसे याद रखना. ठीक है, उनको फेमसली नोन एज is actually, अगर आपने देखा फर्स्ट पेज में आया था मंडे को, एंड हिज लीडर इज अनुरा कुमारा दिसानायक. सो AKD. yes, and actually he is from left party, means is communist ideology, and his actually देखो ये तीनों फाइट किए थे इलेक्शन, AKD, सजीत प्रेमदास एंड रानिल विक्रमसिंघे, and he was the current president. I mean at that time before the election he was the president. ठीक है, ये राष्ट्रपति थे चुनाव से पहले, रानिल विक्रमसिंघे. खैर, जो नए बने उनका नाम AKD, अनुरा कुमारा दिसानायक, और पार्टी का नाम है JVP. ठीक है, JVP जो है वो इनके लैंग्वेज में जातिका जना बलवेगाया. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज NPP, नेशनल पीपल्स पावर. ठीक है, यस, JVP भी सही होगा या NPP कह लो, JJB या NPP. ठीक है, NPP एक्चुअली ये है ना, कहीं कहीं पे JJB या JVP भी लिख रहे हैं, बट यस, दिस यू शुड बी नोइंग इट. एक्चुअली क्या है कि आई थिंक वो उनकी लैंग्वेज में इस तरह लिखते होंगे इसीलिए, बट इन इंग्लिश NPP कहा जा रहा है, नेशनल पीपल्स पावर. ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया. या JVP भी कहते हैं. ठीक है, सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. नाउ फर्स्ट पेज में एक और GST काउंसिल से रिलेटेड था न्यूज. सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग इट, व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट GST काउंसिल. I hope you are aware GST Council is a constitutional body. So under which article you will find this? दूसरा है, who is the chairperson of GST Council? chairperson का नाम बताना है. कौन है GST Council के chairperson? Please tell me that as well. Article 279 capital A. Yes, Safi Nomani, Tanishka Verma, you both are right. And who is the chairperson of GST Council? The Finance Minister of India. Yes, Safi Nomani, right. Huh? So GST Council is looking at tax rates item by item for rationalization, says Nirmala Sitharaman. So ये न्यूज में था, इसलिए पता होना चाहिए. Yes, Tanishka Verma, you are right. हाँ, okay. Now, तो ये है आर्टिकल 279 कैपिटल ए टॉकिंग अबाउट GST काउंसिल. ठीक है, ये सब टैक्स रेट एग्जेम्पशंस एंड ऑल.
Yes. Now, first page में there was another article. Yes, और भी लोगों ने आंसर किया. You all are right. Quad launches maritime health initiatives, condemns aggression in disputed region. So Quad countries, and these are the four Quad countries leaders, and they have launched a maritime health initiative. जैसे health initiative था Quad cancer moonshot launch किया, ठीक है. देन और भी बहुत सारी चीजें लॉन्च की दे फॉर फाइटिंग सर्वाइकल कैंसर. फिर एक गावी अलायंस होता है, ये पढ़िएगा, बिकॉज ये कोविड के टाइम पर काफी न्यूज में था. दिस वाज एन अलायंस फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सो दैट द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कैन इजीली प्रोवाइड वैक्सीन्स टू डिफरेंट पीपल, ठीक है. तो गावी अलायंस होता है, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, प्लीज गो एंड रीड इट, है ना. सो दीज आर द थिंग्स दे हैव डन इट. फिर मैरीटाइम से रिलेटेड एक स्कीम है मैत्री, है ना. This is called as Maitri. This also got published in the newspaper. और ये सब मैंने डिटेल में बताया है. कहाँ बताया? यहाँ. I have already discussed these things कि Maitri, Gavi and all everything here. So आपको करना है कि अगर आपने नहीं देखा है, so I would suggest please go and watch it. YouTube पे जाना है, सर्च करना है all about Quad Summit 2024 career launcher law entrance. You will get this video. नहीं तो इसी YouTube चैनल पर अगर आप क्लिक करके जाओगे तो भी नीचे में जाओगे तो you will scroll it, you will get it. So इसीलिए आई वुड सजेस्ट ये वाला जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज क्वाड समिट वाज वेरी मच इन द न्यूज रिसेंटली, ठीक है. Now the next one is there's a question. This topic was also in the news in Monday newspaper on the first page. D. Gokesh and Divya Deshmukh are in news. They are actually athletes who won in Paralympics: chess player, table tennis player, billiards. What is the right answer? Yes, Nisha, Alia, Safi, Naman, you are right. The right answer is B, chess player. इन लोगों ने क्या जीता है, कुछ आइडिया है? D. Gokesh is very famous. This guy is very famous. And he is in teenage. I guess not even 15, 16, 17 का age होगा इनका. And he is from Tamil Nadu and is winning a lot of games at the chess level, at the world level. So Indian teams bag gold, make history at chess Olympiad. So ये D. Gokesh है, ये बहुत famous है. And ये Divya Deshmukh है. Yes, gold and all. Yes, chess Olympiad. Yes, Alia Shahriar, you all right. इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा. डी गुकेश है, आर प्रगनंदा है, अर्जुन, ये दोनों बहुत फेमस है. डी गुकेश एंड आर प्रगनंदा, ठीक है. Then you can see डी हरिका, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, they also won and all. So some names you should be knowing it, ठीक है. जैसे डी गुकेश बहुत फेमस है, आर प्रगनंदा is very famous. These you should be knowing about it. Now, let's move on to the next one. The next is the freedom of speech and expression has some reasonable restrictions which are mentioned in Article 14, 19, Clause 2, 21, Clause 3, 19, 1F. Where do you find? So ये भी एडिटोरियल आया था जब फैक्ट चेकिंग यूनिट वाला जजमेंट आया था ना बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसके बाद. सी एक्चुअली क्या है, freedom of speech has some reasonable restriction. Reasonable restriction means I hope you are aware, I have discussed so many times that there is nothing called as absolute freedom. कोई भी फ्रीडम या राइट्स जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है. ऑलवेज देयर विल बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. चाहे आर्टिकल 21, 14, 16, 21, कोई भी राइट जो होता है ना वो एब्सोल्यूट नहीं होता है कि एकदम जो चाहे जितना मन चाहे राइट हो. ऑफ कोर्स अ पर्सन इज बाउंडेड, ऑफ कोर्स. So the Article 19 Clause 1A, Article 19 1A talks about freedom of speech and expression. 19 Clause 2 is talking about reasonable restrictions on those. 8 reasonable restrictions हैं, ठीक है. मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, है ना. 19 Clause 2 अगर आप पढ़ोगे ना तो कहाँ का है? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस. मतलब ये है कि ये सब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं. मान लीजिए आपको ऐसी बात बोले जो इनडिसेंट है, इमोरल है, या कोर्ट का मजाक बना रहे हैं, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस यानी किसी को भड़का रहे हैं या भीड़ भड़का रहे हैं, लाइक इंसाइट कर रहे हैं या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे साइड में आर्टिकल अनवारंटेड कर्ब्स. अनवारंटेड कर्ब्स में यहाँ पर वही बताया गया. एक्चुअली ये वही है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था. लास्ट सैटरडे को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फैक्ट चेकिंग यूनिट जो गवर्नमेंट ने बनाया था उसको एंड ऑल. तो उसमें यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 का जिक्र है, ठीक है. सो वी हैड डिस्कस्ड, आई मीन दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट आर्टिकल 19 क्लॉज 2, so that is why I have discussed it here.
हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये सब एडिटोरियल पढ़ा होगा होपफुली, है ना. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स. नाउ एक और था उसी मंडे को, प्रोफेशनल इंडियन वुमेन वर्क द मोस्ट आवर्स ग्लोबली एंड ऑल. ठीक है, तो ये सब में एक्चुअली क्या था न्यूज में कि एक देयर वाज अ गर्ल एक्चुअली 26-year-old चार्टर्ड अकाउंटेंट हु वाज वर्किंग इन अ वेरी फेमस प्रोमिनेंट corporate company and she died. So her mother was saying because of work stress and all. तो इसी पर देखो रिपोर्ट है कि देखो यंग इंडियन वुमेन प्रोफेशनल जॉब्स आर वर्किंग ओवर 55 आवर्स ए वीक, 55 घंटा एक वीक में काम कर रही हैं. तो ये सब कर एक रिपोर्ट है. व्हाई दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड? बिकॉज एक कॉन्सेप्ट होता है वर्क लाइफ बैलेंस, दिस इज कॉल्ड. आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड इट. वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस, मतलब कि वर्क को भी और पर्सनल लाइफ को भी, है ना. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कोर्स उससे क्या है कि आदमी फिजिकली एंड मेंटली फिट रहता है, तो इवन वर्क में भी मतलब ज्यादा काम कर पाएगा ना, प्रोडक्टिविटी विल बी हाई. तो इसीलिए दीज डिबेट्स डू हैपन कि क्या 70 घंटा काम करना चाहिए एक वीक में, नहीं करना चाहिए. दीज डू डिबेट्स हैपन. सो पीपल से कि देयर हैज टू बी अ वर्क लाइफ बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज में और. ठीक है, सो दैट इज व्हाट. Now, page number 13 में एक आर्टिकल थी, Israel orders 45-day closure of Al Jazeera in occupied West Bank. ठीक है, अब आपको बताना है कि अल जजीरा इज अ न्यूज चैनल विच बिलोंग्स ओरिजिनली टू विच कंट्री. कौन से कंट्री का है, कोई बता सकता है? तो देखो जैसे यहाँ पे इंडिया है, दिस इज इसराइल. तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये वेस्ट बैंक है, दिस इज एक्चुअली ऑफ पैलेस्टीन. और ये गाजा है, दिस इज गाजा, दिस इज वेस्ट बैंक. तो यहाँ पर एक्चुअली द मिलिट्री ऑफ इजराइल एंटर्ड हियर एंड यही वेस्ट बैंक में जो अल जजीरा का ऑफिस था, दे आल्सो क्लोज दैट, ऑर्डर टू क्लोज इट फॉर 45 days. Al Jazeera originally is from Qatar. Yes, Pritam and Safi, you both are right. It is actually headquartered in Doha, Qatar. तो दोहा कतर कहाँ पे? ये कतर. And the capital of which is Doha. ठीक है. Yes, Tanishq Verma, you are right. हाँ. तो Israel orders 45-day closure of Al Jazeera in occupied West Bank. This you should be knowing about it. ठीक है. द नेक्स्ट इज इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ. ये हम लोगों ने डिस्कस किया भी थे, ट्यूसडे में एडिटोरियल आया था मिस्टर प्रभाष रंजन का, प्रोफेसर ऑफ ओपी जनरल यूनिवर्सिटी एंड ऑल. तो इसमें ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सेम. आपको पता है वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अ पिटीशन वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, जो डिसमिस हो गया था, दैट इंडिया शुड नॉट बी एक्सपोर्टिंग आर्म्स टू इजराइल बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन. तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, दैट इट इज एक्चुअली the policy decision taken by the government, तो judiciary should not intervene. लेकिन उन्होंने जो है जो पेटिशन फाइल किया गया था वो यही डीपीएसपी आर्टिकल 51 क्लॉज सी को साइड करते हुए ना, foster respect for international law and treaty obligation in dealing of organized people with one another. ओके, यही था ना. तो इसको साइड करते हुए पेटिशन फाइल किया गया था कि दिस इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू इंश्योर फॉलो द इंटरनेशनल लॉ. तो उस इंटरनेशनल लॉ किसकी बात हो रही थी? जेनोसाइड कन्वेंशन की. ठीक है, so, इसी को वो डिस्कस कर रहे हैं, ऑथर डिस्कस कर रहे थे. द ऑथर वाज टॉकिंग अबाउट इट एंड ऑथर इज कोटिंग एन इंसिडेंट फ्रॉम नेदरलैंड आल्सो, कि नेदरलैंड एक्चुअली नेदरलैंड के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे F-35 फाइटर जेट उसको स्टॉप कर दीजिए. इट इज क्रिटिकल टू रिकॉल दैट अ फ्यू कंट्रीज हैव कर्ब्ड डिफेंस एक्सपोर्ट टू इजराइल. फॉर एग्जांपल, a court in Netherlands ordered the Dutch government, Dutch मतलब ही नेदरलैंड की गवर्नमेंट को, to block the export of F-35 फाइटर जेट. F-35 जो है ना फाइटर जेट होती है, जैसे आपने राफेल का नाम सुना होगा, दिस इज आल्सो फाइटर जेट. देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सुखोई एंड अदर, है ना. तो इसी तरह F-35 जेट जो है वो नेदरलैंड शायद देने वाला होगा ना इजराइल को, बट वहां का कोर्ट ऑर्डर आया एंड इट सेड कि यू कैन नॉट एक्सपोर्ट इट because it is violation of European Union regulation which prohibits military equipment exported to a country if there is a clear risk that recipient country would use such equipment to violate international humanitarian law. मतलब ये है कि कोर्ट ने मना कर दिया ये कह करके कि अगर ये ऐसी जगह आप भेज रहे हो जहां चांसेस है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन हो सकता है, मतलब perhaps they are talking about genocide convention. So there's a possibility that it might be misused on the common people, and that is why it is violation of humanitarian law. That is why the court did not allow it. Okay, तो इसी का उन्होंने एक स्टोरी कोट किया. ठीक है. देन वो बता ये रहे थे, ऑथर ये बता रहे थे कि कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ को
इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, जैसे फॉर एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. सो दिस इज रिलेटेड विद व्हाट? कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट? विशाखा केस इज रिलेटेड विद व्हाट? हम लोगों ने कई बार जिक्र किया, वी हैव डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम्स. एनीवन? यस, हाँ, यस, सैफी नोमानी, तनिष्क वर्मा, राइट. हाँ, तो एक्चुअली इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज गो ऑन द यूट्यूब, आपको मिलेगा. हेमा कमेटी रिपोर्ट सर्च कीजिएगा, हेमा कमेटी रिपोर्ट, CLLST ऐसे यूट्यूब पे सर्च मारिएगा ना, आपको मिल जाएगा. ठीक है, जस्ट सर्च ऑन इट. हाँ, इससे रिलेटेड एक लॉ बनाया गया था, पॉश एक्ट. वेरी गुड. यस, आलिया शहरियार, यू आर राइट. हाँ, ठीक है, दिस यू शुड बी नोइंग इट. Okay, now there's next question. Which of the film has been nominated for Oscar from India? अभी recently काफी न्यूज में था. हाँ, directed by और produced by which person? लापता लेडीज, राइट. सैफी नोमान, यू राइट. हाँ, लापता लेडीज नाम है. ठीक है, इज इंडियाज एंट्री इनटू ऑस्कर. ओके, और ये डायरेक्टेड बाय किरण राव. किरण राव ने इसको डायरेक्ट किया. ठीक है, so this you should be knowing about it. Okay, so just have an idea. So ये तो फाइनली मार्च में अनाउंस किया जाएगा, तो की फाइनल विनर. तो उस वक्त तक तो आपका एग्जाम हो चुका रहेगा, बट यू शुड नो इट कि किसको नॉमिनेट किया गया. यस, तनिष्का, निशा, सैफी, यू ऑल वे राइट. वेरी गुड. Now the next one is, who is the chief minister of Karnataka and which political party he belongs to? Now why I'm saying, because recently the Karnataka High Court the has passed some judgment related to him. Actually हुआ ये था कि गवर्नर ने अप्रूवल दे दिया था for initiating a case, and after that actually the High Court has given permission also. High Court ने भी एक तरह से, हाँ, MUDA scam कुछ है, Mysore Urban Development Authority. So there is an allegation that there has been a scam in Muda. Alleged scam लिखते हैं because it is still pending in the court. Yes. So is the CM of Karnataka, and what is the political party he belongs to? Yes, Preetham, you're right. Mr. Siddaramaiah is the chief minister. नहीं, MK Stalin is actually the chief minister of Tamil Nadu, Nisha. ठीक है. So what you have answered it is for the state of Tamil Nadu. His name is actually Mr. Siddaramaiah, and he is actually from which political party? Congress, Indian National Congress, है ना. So let me show you. ये आर्टिकल आई थी वेंसडे को. कर्नाटक हाई कोर्ट अपहोल्ड्स नॉट फॉर प्रोब अगेंस्ट सीएम. नॉट मतलब होता है यस, परमिशन देना, है ना. Okay, so the chief minister Siddaramaiah, है ना. In a major setback to the chief minister Siddaramaiah, the Karnataka High Court on Tuesday upheld the permission granted by the governor to conduct an investigation against alleged irregularities in allotment of 14 sites worth rupees 56 crore to his wife Parvati by Mysuru Urban Development Authority. ओके, सो मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगा, मतलब रोका नहीं है एक तरह से, कि द इन्वेस्टिगेशन विल हैपन एंड वी विल फाइंड आउट. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा. सो दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, फिर एक और आया था, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था. येस्टरडे आल्सो हैड डिस्कस इट. वी वांट आंसर्स. अपेक्स कोर्ट सीक रिपोर्ट ऑन स्टबल बर्निंग पैनल ऑन एयर क्वालिटी. तो हम लोगों ने बताया था कि जैसे यहाँ पे डलिए, दिस इज पंजाब, दिस इज हरियाणा. तो स्टबल जो है यहाँ से आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, राइस एंड ऑल, तो जो स्टबल बचता है उसको जलाया जाता है. सो इट एक्चुअली कॉजेस पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड ऑल. ठीक है, वी हैड डिस्कस्ड इट. सो इट हैड आस्क्ड CAQM के चेयरपर्सन से मांगा था ना, डिटेल मांगा था कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एंड ऑल. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज बीन सेट अप इन 2021 बाय पासिंग अ लॉ. Yes, yesterday we had discussed it, है ना. ठीक है, so these are the things. Now एक और था, PM मोदी actually visited USA for Quad and for United Nation meeting, है ना. ये सब भी मैंने आपको बताया था कि actually he went there. इस पर हम लोगों ने already we have taken class on Quad Summit, है ना. So please go and watch that. जो मैंने Quad Summit 2024 पे क्लास ली है, if you have not watched it, please go and watch. It is available on the same YouTube channel. क्वाड समिट 2024 लिखा होगा. ओके,
तो इसमें यह है कि यू नो तो Prime Minister Modi went to Delaware where he actually attended Quad Summit, है ना. उसके बाद फिर वहां से he went to न्यूयॉर्क where he attended the UN General Assembly session. मैंने आपको बताया सितंबर में सेशन स्टार्ट होता है ना, सितंबर टू सितंबर चलता है 1 ईयर के लिए. there is one president. मैंने आपसे कई बार बताया भी है. I had discussed many times that we are having a new UN General Assembly president from Cameroon, है ना, फिल्मोन यंग उनका नाम है. These things we have already discussed it. ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट यस यू शुड नो दीज थिंग्स. देन एक एडिटोरियल था, दिस हैज बीन रिटन बाय चेयरमैन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन के द्वारा लिखा गया है. एनसीआरएफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में वो बात कर रहे हैं दैट देयर इज अ प्रपोजल ऑफ कमिंग अप विद एनसीआरएफ व्हिच इज बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्रेडिट वगैरह होगा. जैसे यूजिंग एनसीआरएफ हायर एजुकेशन कैन हैव एन यूनिफाइड एक्युमुलेशन ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट अक्रॉस मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन. अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक डोमेन में कुछ क्रेडिट कलेक्ट किया तो दूसरी जगह दूसरे कॉलेज में दूसरे एडमिशन में इट वुड बी हेल्पफुल लाइक दैट. ठीक है, सो ये मेन चीज है. और एनसीआरएफ जो है सिर्फ क्लासरूम से रिलेटेड नहीं, लैबोरेटरी वर्क होगा तो उसमें भी आपको एनसीआरएफ क्रेडिट मिलेगा. गेम्स स्पोर्ट्स योगा में भी मिलेगा, म्यूजिक हैंडीक्राफ्ट में भी मिलेगा. सो यू विल गेट क्रेडिट. Those credits would be helpful in further admission in other colleges. So these are the things being talked about. Now this is very very important. ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था. This was related with POCSO law. So please go and read it. ये legal faculties I think would be teaching it, है ना. But yes, you should know about the POCSO law and the recent judgment of the Supreme Court regarding the content associated with children and all. So this was the Supreme Court had passed an order. तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो ये वाली लॉ कब पास हुआ इसके बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, कि व्हाट इज द मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, मतलब कितना से अंदर जो है इसको चाइल्ड कैटेगराइज किया गया इस लॉ में, पॉक्सो लॉ में. गो एंड फाइंड आउट कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज अप टू व्हिच अ चाइल्ड विल बी कंसीडर्ड एज अ चाइल्ड. देन दिस लॉ वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन व्हिच ईयर. तो ये सब चीज थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. ना एक और आर्टिकल थी वेंसडे में, ये बहुत अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आई वुड से. गुड बिगनिंग सेज इंडिया ऑन यूएनएससी रिफॉर्म डॉक्यूमेंट एंड ऑल. तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने पूरा यूनाइटेड नेशन पर आई हैव टेकन अ सेपरेट वीडियो, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, है ना. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि रिफॉर्म, जो मेन रिफॉर्म है वो यहां पर है कि एक्चुअली दीज आर द परमानेंट 5 एंड इफ यू सी इट केयरफुली, देखो ये इंक्लूसिव, लेस इंक्लूसिव. जैसे इंडिया ने क्या बोला है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, वर्ल्ड लीडर्स रिकॉग्नाइज द नीड फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू बी मोर इंक्लूसिव, है ना. दिस इज व्हाट वी हैव सेड. मिस्टर विक्रम मिस्री इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ही सेड कि इसको और मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है. क्यों इंक्लूसिव बनाने की जरूरत है मैं बताता हूँ. देखो पहले देखो, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये है. तो मैं दिखाता हूँ. तो यूके यहाँ है, यूएस यहाँ है, फ्रांस यहाँ है, ये रशिया है और ये चाइना. अगर आप गौर से देखोगे तो इतना छोटा सा यूरोप है लेकिन 2 कंट्री रिप्रेजेंटेड है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में. नॉर्थ अमेरिका में यूएस रिप्रेजेंटेड है, साउथ अमेरिका की कोई कंट्री नहीं रिप्रेजेंटेड है. पूरा इंटायर अफ्रीका इतना बड़ा कंट्री, उसकी कोई कंट्री नहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में. ठीक है, नॉट ओनली दैट, आप देखो जैसे एशिया इतना बड़ा है उसमें सिर्फ आप 2 कंट्री दे रहे हो, यूरोप में इतना छोटा हो के 2 कंट्री. और वही नहीं इंडिया, इसलिए बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई इंडिया शुड आल्सो बी अ मेंबर. तो आप क्या बता सकते हो रीजन? जैसे एक है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में. ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर रीजंस, है ना. सो डेमोक्रेटिक पास्ट है ना, इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन पावर, है ना. सो बहुत सारे रीजन है दैट इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. तो इसी की बात कही गई, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ओके. Now, the next one is, since we have discussed about the president of Israel, let's talk about the new prime minister of Sri Lanka. We have discussed the new president of Sri Lanka. Let's talk about the new prime minister of Sri Lanka. Who is the new prime minister of Sri Lanka? बताइए. The new prime minister of Sri Lanka. Yes, Tanishq Verma, you're right. Harini Amara Surya. Yes. Oh, you're right, Hana. So this is the new prime minister of Sri Lanka. You should be knowing it. Yes, Afina Mani, Tanishka, you all right, है ना. Then Thursday को article थी 57% turnout in peaceful phase 2 polling in Jammu and Kashmir. ठीक है,
तो ये बिकॉज इलेक्शंस आर हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो उसमें 57% टर्न आउट हुआ, 57% वोटर्स केम एंड वोट, है ना. फिर वन नेशन वन इलेक्शन पर आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, तो प्लीज गो एंड वॉच इट. इसमें जाना है वन नेशन वन इलेक्शन करियर लॉन्चर लॉ इंटरेस्ट सर्च करना, यू विल गेट दिस वीडियो, गो एंड वॉच इट. ठीक है, सो दिस यू शुड बी नोइंग इट. फिर एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अभी एक मीटिंग होने जा रही, सो इट विल बी हैपनिंग इन पाकिस्तान, सो मोस्ट लाइकली इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर वुड बी गोइंग देयर. ठीक है, तो मैंने एससीओ समिट जो इस साल हुई थी, मेन जो फुल फ्लेज समिट अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है. Just search it all about SEO Summit 2024 CLLST. You will get this video and watch it. इसको स्टार मार्क कर लीजिए, है ना. Then we had discussed on Friday, central government advises Indian nationals to leave Lebanon, considers naval evacuation and all. Okay, तो आपको पता है, here is India, this is Israel, यहाँ पे लेबनन है, तो यहाँ पे पूरा वॉर चल रहा है. So this is Israel, यहाँ लेबनन है, so Lebanon based Hezbollah is attacking Israel, Israel is attacking Hezbollah, so यहाँ Hezbollah organization is there. तो अब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट अपील किया है कि अगर कोई इंडियंस लेबनन में है तो वापस आ जाए. मतलब नेवल कंसिडर्स नेवल इवैक्यूएशन, की नेवी से भी इंडिया सोची कि अगर नेवी शिप वगैरह भेज करके इंडियंस को वापस लिया जा सके, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन प्लान. आई होप यू आर अवेयर, दिस इज वेरी मच इन द न्यूज. तो इंडियन एम्बेसी ने रिक्वेस्ट किया है, बेरूत कैपिटल लेबनन की, दिस इज द कैपिटल ऑफ लेबनन, तो जहां पर ये request किया गया now. ठीक है, I hope you are aware. And recently we had discussed Hezbollah's head was killed. What is his name? Chief, Hezbollah chief head, whatever you can say. What is his name? Anyone? Because I'm expecting news में था. It has been in the news in the last 1 or 2 days. Okay, now it's a homework. I'm not going to tell you because it is important. हाँ, Hassan Nasrallah, right? Alia, you're right. हाँ. So yes, you should know it because this is very much in the news. So I am giving you homework also. So go and find out the answer. Only one person has answered it correctly. ठीक है. So but you should be knowing it. ठीक है. Yes, Tanishq Verma, you are also right. हाँ, ठीक है. And before that, a few months back, a Hamas chief was actually in Iran. He was also killed when he was just after he was actually in a coronation ceremony, or you can say oath taking ceremony of the new president of Iran, and after that actually he was killed. Hamas chief. So go and find out his name also. I'm not telling because this is a homework and these two are very very important. Okay, so hi Ismail Hania, very good. Safi Nomani and Alia, very good. Yes, Tanishq Verma, very good. So Ismail Hania. तो ये सब नाम पता होना चाहिए. यू शुड बी नोइंग इट बिकॉज इट हैज बीन वेरी मच इन द न्यूज एंड ऑफ कोर्स दिस कैन बी आस्क्ड. दूसरा मैंने आपको बताया भी था, अगर अभी तक आपने नहीं किया है सो आप हिजबुल्लाह का विकिपीडिया जाके पढ़िए एंड हमास का, बिकॉज लास्ट ईयर दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम विकिपीडिया ऑफ हमास. So please read the Wikipedia of Hezbollah also. There is highly likelihood that they will be giving a question on it. ठीक है, इसलिए इसको पढ़िएगा जाके. Now storm brewing in East South China Sea. Text and context में आर्टिकल था. मतलब इसीलिए now there's a question for you, please tell me, then after I'll explain this. ठीक है, name the cyclone that has hit Vietnam. अभी सब 2-3 दिन पहले की बात है. And a cyclone has hit Florida in USA. Both have actually happened in the last 2-3 days. That is why I'm discussing. बताइए, ये दोनों न्यूज में था. एक साइक्लोन वियतनाम के आसपास हिट हुआ है, साउथ चाइना सी के आसपास, दूसरा फ्लोरिडा में हिट हुआ यूएस में, and both has been in the news. So please tell me the names of both the cyclones. बताइए, I'm waiting. Anyone? Okay, so let me tell you if people are not aware. So मैं बताता हूँ. Cyclone Yagi kills 14 in Vietnam as officials warn of heavy rain floods. Cyclone typhoon वही होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून भी कहते हैं. ठीक है, so it's Yagi. और दूसरा देखो यागी, यहाँ पे देखो ये इंडिया है, दिस इज वियतनाम. ठीक है, तो यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है यहीं पर हिट किया है, इसी में आया. ठीक है, तो यही लिखा होता है ना कि स्टॉर्म ब्रूइंग ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, तो ये साउथ चाइना सी में यहाँ से हिट किया वियतनाम में. टाइफून यागी इसका नाम है. ठीक है, और दूसरा यस हेलेन इन यूएस, वेरी गुड प्रीतम. और एक और है साइक्लोन हेलेन करके लिख दे, HELENE. आई डोंट नो हेलेन पढ़ते या हेलेन पढ़ते हैं.
एंड दिस हैज एक्चुअली हिट फ्लोरिडा. तो ये भी दिखाता हूँ यूएस में. ये तो हो गया वियतनाम का इधर हो गया और इंडिया के ईस्ट में, और यहाँ पे यूएस है, ये वाला जो हिस्सा है इसको फ्लोरिडा कहते हैं. ठीक है. और यहाँ पे अभी साइक्लोन हेलिन, ये सब पूछते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ. 9 साइक्लोन हेलिन हैज हिट द फ्लोरिडा एंड ऑल रीजन. ये सब पता होना चाहिए, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है. So then now let's talk about yesterday. Yesterday हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था. सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्ट एयर क्वालिटी पैनल ओवर पॉल्यूशन इन कैपिटल. तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज नॉट हैप्पी विद CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना, कि आपने बहुत ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया. एक्चुअली राजेश वर्मा इज द चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ CAQM. तो सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट हैप्पी कि आपने जो है यू आर नॉट एबल टू स्ट्रांगली कंट्रोल द एयर पोल्यूशन एंड ऑल, है ना. दिस वी हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास. पर मैंने CAQM के बारे में कल बताया भी था सैटरडे द हिंदू एनालिसिस में, है ना. देन आई हैव टोल्ड यू दिस इज द लॉ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 व्हिच मेड CAQM. ठीक है. So this you should be knowing. Then Mr. M.K. Stalin, he is actually Mr. M.K. Stalin, he is the chief minister of which state? And he is from the political party DMK. कौन सी स्टेट से? Is CM of Tamil Nadu. He met Prime Minister Modi because he wants more fund from the central government. For what? तो एक तो चेन्नई मेट्रो के लिए चाहिए, दूसरा समग्र शिक्षा और एजुकेशन रिलेटेड, है ना. And the third is related with fishing scheme, because a lot of fishermen you will find it in the state of Tamil Nadu because of long coast, है ना. Yes, Tanishka Alia Safi, you all right. He is from DMK and his chief minister of Tamil Nadu. ठीक है. तो ये सब मैंने बताया था. फिर कल मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, स्टार्टेड बाय E.V. रामास्वामी नायकर, है ना, और सो नोन एज पेरियार इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये सब मैंने कल डिस्कस कराया ऑलरेडी, है ना. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, E.V. रामास्वामी नायकर. ठीक है. E.V. रामास्वामी also known as Periyar by his followers. ठीक है. Okay, and this was actually self-respect movement was actually a movement by for the promotion of the lower caste or non-Brahmins. So the promotion of lower caste and all, the rights of lower caste and all, this is what they had discussed. Okay, yes. I know. Yes, Tanish Verma, you are right. ठीक है. That is what they are talking about, है ना. तो ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट है. दिस इज कॉल्ड एज कोरोमंडल कोस्ट. मैंने बताया भी था. दिस आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना. इन मद्रास प्रेसिडेंसी जस्टिस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920. ठीक है. तो ये सबका ऑलमोस्ट 100 इयर्स कंप्लीट हुआ था. ठीक है ना. जैसे ये वाला हो गया, दिस दे हैव कंप्लीटेड 100 इयर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. 1925 में स्टार्ट हुआ, सो दे हैव जस्ट मतलब 2025 में 100 साल हो जाएगा. ठीक है. सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. ओके. Then Senthil Balaji bail के बारे में हमने बताया था. He was ex-minister of Tamil Nadu. He got bail because a few months back he was arrested by Enforcement Directorate in money laundering charges. ED ने उनको अरेस्ट किया था. कोई मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? पैसा के हेर फेर करना. मींस there was an allegation of misuse of funds or arbitrary use of fund or misappropriation of fund. So he was arrested. Now he has been given bail by the Supreme Court. ठीक है. ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था. Then these things I think we had discussed about it. Yes, कि Russia's geopolitical pivot to Asia, New India chapter. ना, so इसमें मैंने आपको बताया था कि before फरवरी 2022 Russia was having good relationship with Europe comparatively. जब से फरवरी 2022 में Russia attacked Ukraine, so the rest of European countries, most of them have actually the relationship has soured. Relationship खराब हो गया थोड़ा सा. Like, and Russia is more focusing on China and India. So the trade deal, जैसे $240 billion का trade deal किया है चाइना के साथ रशिया ने, है ना. So these are the things they are talking about. उसी को pivot to Asia बता रहे हैं कि Russia is now moving towards Asia more as compared to Europe. So these are the things. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि last fiscal year में इंडिया का largest trading partner कौन है? So China है. This also I had discussed it, है ना. So that is what you should be knowing about it, है ना. Then stubble burning मैंने ऑलरेडी बता दिया कि stubble burning का I've already discussed. हाँ, इसमें this आने गवर्नमेंट हो गया. This also I have discussed it. I think
आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन फर्दर मोर. जैसे एक दो चीज मैं बताता हूँ. जैसे ये वाला वाटर बॉडी इसको कहते हैं डेड सी. दिस इज कॉल्ड एज सी ऑफ गैलिली. ये हमने कल क्लास में बताया भी था सैटरडे को, है ना. दिस इज मेडिटेरेनियन सी. ठीक है. दिस इज गाजा एंड दिस इज वेस्ट बैंक. ये वाला है ना. ओके, एक होमवर्क है. आफ्टर द क्लास इज ओवर फाइंड आउट. यहाँ पे जेरूसलम देख रहे हो. So Jerusalem is important for all the three religions, all three important religions. ठीक है. Abrahamic religion कहते हैं, यानी for Islam, for Christianity and for Judaism. ओके. तो आपको ये बताना है कि what are the important religious places associated with all these three religions in Jerusalem. होमवर्क है. क्लास ओवर होने के बाद फाइंड आउट कीजिए, बल्कि वो आपके लिए भी काम का है एग्जाम में, कि फाइंड आउट कीजिए कि जेरूसलम में इस्लाम से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस है, और जुडाइज्म यानी ज्यूज जो होते हैं उनको जुडाइज्म रिलीजन कहते हैं, उनसे रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस है, या कोई जमीन है, कोई दीवार है, कुछ एनीथिंग, कोई टेंपल है, लाइक दैट. सो गो एंड फाइंड आउट. आफ्टर द क्लास इज ओवर यू विल बी प्रोवाइडेड अ रिकॉर्डेड वीडियो. उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा. आई वुड से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, कुछ लोगों ने लिखा है डोम ऑफ रॉक ऐसा. ये सैफी नोमानी आप ऐसे लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ. क्लास खत्म होने के बाद ऐसे लिखिए. जैसे मान लीजिए कि क्रिश्चियनिटी है, तो आप ऐसे लिखिए क्रिश्चियनिटी, सामने उसका नाम लिखिएगा. जुडाइज्म है, और जो भी स्ट्रक्चर या टेंपल या मॉस्क जो भी है, फिर इस्लाम, ऐसे करके लिखिएगा. तीनों एक साथ एक ही कमेंट में लिखिएगा. आई विल सी इट, आई विल बी वेरी हैप्पी. ठीक है. सो गो एंड फाइंड आउट. एंड देयर इज वन मोर पोर्ट आल्सो. यहाँ पे हैफा पोर्ट है. दिस ऑलवेज रिमेन्स इन द न्यूज एंड ऑल, बिकॉज जब बॉम्बिंग वगैरह हुई तो हैफा पे भी बॉम्ब्स वगैरह गिरे थे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. सो इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? So please subscribe to our channel. Press the like button, share this video and subscribe to the channel. So thank you everyone. Thanks for watching. अच्छा हाँ, एक चीज और. Yes, today at 8 PM I'll be meeting. This will be very very important. जो 8 PM पर static GK बच्चे पूछते हैं ना सर, static GK. So today at 8 PM I'll be coming up with the static GK series class, which will be important for CLAT, ALET, और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें static GK से related. ठीक है. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.